Hello students, this is Dr. Padam Singh Tomar, Assistant Professor in Mathematics at Department of Applied Sciences, Galgotia College of Engineering and Technology, Greater Noida. Look at this. We can operate this antiderivative term on e to the power x and cos x separately. So here we get two terms, one along with e to the power x and another one is for cos x, right? So now there are two separate terms. Consider this one is pi1 and second one is pi2 and calculate separately for both the terms. So first we have to find pi for e to the power x. We can get pi for e to the power x by putting x is equal to b equal to 1 over here. So when we put b is equal to 1, we get 1 minus 3 plus 4. 1 minus 3 plus 4 minus 2. That is minus 3 minus 2 5 and 4 and 1 is 5. So this becomes 0 and 1 upon 0 is nothing, it is infinite. So on putting x is this b is equal to 1 in denominator over the first term, this will become undefined. So in case of undefined, what we have to do? We have to multiply by x. We have to multiply by x and need to differentiate this denominator with respect to d and again put d is equal to coefficient of x in e to the power x. So by differentiating d cube minus 3d square plus 4d minus 2, we get 3d square minus 6d plus 4 and minus 2 differentiation will give us 0 e to the power x and there is 1 multiplication with x. Now put d is equal to 1 in denominator, we get x upon 3 minus 6 plus 4. So 4 plus 3 is 7, 7 minus 1 is 7 minus 6 is 1 into e to the power x. So this becomes x into e to the power x from the first term. So pi 1 is x into e to the power x. Now from the second term, we have to put d square is equal to minus 1 square. That is minus 1. So d square is equal to minus 1 when we are putting in this denominator second term. So this second term that is pi2 will become pi2 कितना हो जाएगा यहाँ पे जब हम d square की जगह minus 1 रखेंगे, this will become minus d because d cube is nothing, it is d square into d. So putting d square is equal to minus 1, we get minus d from first term and plus 3 from the second term and that is 4d plus 2. 4d plus 2. So it should be 4d minus d is 3d and 3d square. This becomes plus 3 and 4d plus 2. So 3d and this one becomes 5. So this is 1 upon 3d plus 5 and cos x. Minus d plus 3 plus 4d plus minus 2. This is minus 2. This one is minus 2. So plus 3 and minus 2 become plus 1. So this is 3d plus 1 in denominator. Now to make this d square, multiply divide by 3d minus 1. So in denominator we get 9d square minus 1
and in denominator 3d minus 1. Again putting d square equal to minus 1 in denominator, we get minus 9 minus 1, that is minus 10. So 1 upon 10 with negative sign, and this cos x multiplied inside this bracket, this gives you 3 into differentiation of cos x. So the differentiation of cos x is minus sin x, and multiply by 1 with this cos x, this gives you minus cos x. So in this way, by taking minus sign from this bracket, this becomes plus, and final pi1 plus pi2 is x e to the power x 1 by 10 3 sin x plus cos x. So this is your complete pi, and cf is c1 e to the power x dx e to the c2 cos x e3 sin x. On adding cf and pi, you will get complete solution. Yes, any problem with this question? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, मुझे बताइए। No, sir. No, sir. Okay. So let's continue. Now, there is next case, that is power function case or polynomial function case. So in this case, the right hand side will be in the form of a polynomial or some power of x. So to solve PI for such type of problems, we have to write this FD. We have to write this FD in terms of either 1 plus FD or 1 minus FD. Then by taking it into numerator by raising power minus 1, we have to expand these type of functions with the help of binomial series 1 plus minus x to the power minus 1 up to the degree of d equal to degree of x. Expand with this formula up to the degree of d, up to the power of d according to the degree of this x. So in this question, x to the power is 1. So we have to expand this one up to degree d की power 1. If the degree or power of d is greater 2 or greater than 2, then derivative of this x will become 0 in case of degree is greater than 1. Or power of d is greater than 1, then derivative for this x becomes 0 at all the places. So no need to expand up to higher order term, just expand up to the term of degree of over 1. Okay, is it clear? So let's first get the roots from this homogeneous part. The roots are simple. 2 and minus 3 are the roots for this equation. They are real and distinct, and corresponding to real and distinct roots, here becomes c1 e to the power 2x plus c2 to the power minus 3x, right? यहाँ तक क्लियर है सभी को? रूट्स निकाल के CF निकालने तक की प्रॉब्लम क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Now come to particular integration part. So this is the general notation for the PI 1 upon FD into Q. So at the place of FD, this is D function. D square plus D minus x is FD, and at the place of Q there is x. So we have to operate this antiderivative D square plus D minus x on this x according to this rule, as we have discussed this one. Okay, so this rule says that first we have to take the least degree term common from the denominator. So here least degree term is minus 6. So take minus 6 common from the denominator. You will get 1 at the place of minus 6. That is written this one. And in second term you will get the minus d upon 6, because minus 6 is taking common from this term. So all the plus term become minus and negative term become positive. So this d is positive, so it become minus d by 6, and the d square is also positive. So it is also become negative d square by 6. Now, this term from d by 6 to d square by 6, this work like FD.
we consider this one as FD. So this whole term is now taking the form of 1 minus FD. Now put this 1 minus FD into numerator by raising its power minus 1. So it can be written like this: 1 minus 1 by 6 d plus d square to the power minus 1. So this is 1, this is FD. So 1 minus FD to the power minus 1. This will take this form: 1 minus FD to the power minus 1. And now expand this term with this formula up to d to the power 1, because here x to the power is 1. So we have to expand this term by using binomial expansion up to degree 1. So it becomes minus 1 upon 6, and first term is 1. This is minus 1. Sorry, this is minus 1 upon 6. This is minus. So when these two signs are same, this one is negative, this one also negative. When both the signs are same, then all the terms become positive. If these signs are distinct, different, then terms become alternative, negative and positive. But in case of similar sign, the terms are positive. So what will be the expansion? 1 plus x square plus x cube and so on. 1 plus x square and so on. So 1 plus at the place of x there is 1 by 6 d plus d square. So it becomes 1 plus 1 by 6 d plus d square. So no need to write d square because the power of d is greater than power of x. So we have to write only just power of d 1. So first term becomes 1 minus 1 plus 1 by 6 d. And in second term we get the square of d plus d square. So d plus d square gives you all the terms which contains power of d greater 2 or greater than 2. So it becomes d square plus d4 plus 2d cube. 2d cube. This gives you the square term. So in square term, all the powers of d are greater than 1. So we can leave all the powers of d they are which are greater than 1. So just leave all the remaining powers of d. Just write only d over here. And this x will be multiplied inside this bracket, which will gives you minus 1 by 6. X into 1 is x plus 1 by 6 into d, differentiation of x. D means differentiation of x. So it becomes minus 1 upon 36. 1 upon 36, 6d plus 1. Sorry, 6x plus 1. This is your PI. 1 upon 36, 6x plus 1. And this is your CL. So in this way you can find the solution. Whenever right hand side part contains x or x to the power or polynomial in x. Now look at this single question which contains x square plus 1 in right hand side. So can you find its PI? Can you find its PI? सर डी स्क्वायर वाला पार्ट समझ में नहीं आया सर, तो डी स्क्वायर कैसे Yes. Actually, look at this one. Look at this one. What this language states? Here, we have to expand this 1 plus fd or 1 minus d by binomial theorem in power of d up to the term d to the power m. कहाँ तक एक्सपेंड करना है इसको? d की पावर m तक. और m क्या है? m है x की पावर. तो x की पावर m है तो d to the पावर m तक इसको एक्सपेंड करना है. जैसे यहाँ पे x की पावर 1 है, इस क्वेश्चन में x की पावर 1 है, तो हम कहाँ तक एक्सपेंड करेंगे इसको? d तक करेंगे. ये d स्क्वायर वाली टर्म नहीं लेंगे. क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि x का d स्क्वायर 0 हो जाएगा. 2 बार डिफरेंशिएशन x का 0 हो जाएगा. ऐसे 3 बार 4 बार करेंगे तो वो सब के सब 0 हो जाएंगे. So that is waste of time to write higher order term. Just write the required term.
So in case of power 1, the required term is D, and higher power of D will be neglected because all the terms will become 0. Right? Is it clear? Yes, sir. Okay. Now look at this question. There is x to the power 2. तो कहाँ तक एक्सपेंड करेंगे आप? अगर x to the power 2 है राइट साइड में तो D D2. square. Second power. वहां तक एक्सपेंड करेंगे जहां तक कि d की पावर 2 आ रही है. d की पावर 3 और हायर ऑर्डर टर्म सबको सब छोड़ देंगे, वो सब जीरो हो जाएंगे. ठीक है. d की पावर हायर टर्म which are 3 or greater than 3 power, they will become 0. Fine. So this question you can take d common from all these three terms and put d is equal to m. So it will become m square minus m minus 6. So this m gives you the 0 and m square minus m minus 6 will gives you the 3 comma minus 2. So because differential equation having 3 order, so its auxiliary equation will become in degree 3, which having 3 roots and all 3 roots are real and distinct. कौन से रूट्स हैं इसके? 0 है, -2 और 3 है. So corresponding 0, 3, -2 and 3, you can write is CF as C1 e to the power 0x, C2 e to the power 3x, C3 e to the power -2x. For each and individual roots will get the different term in CF. Now come to the PI. So PI particular integral will take the case of x to the power m. So we can write 1 upon md like d square. This is d cube. D cube minus d square minus 6d, and we have to operate this antiderivative on x square plus 1. तो कैसे ऑपरेट करते हैं? सबसे पहले लोएस्ट डिग्री टर्म देखते हैं. इसमें क्या है? लोएस्ट डिग्री टर्म क्या है? अभी -6d. लोएस्ट डिग्री टर्म क्या है? -6d. तो minus माइनस 6D. 6d को कॉमन ले लेंगे. -6d को इसकी जगह 1 रह जाएगा ये, और डी स्क्वायर अपॉन 6d ये माइनस का है, और माइनस कॉमन ले रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा d अपॉन 6. एक d कैंसिल हो जाएगा ये, और d क्यूब अपॉन d बचेगा d स्क्वायर, तो d स्क्वायर अपॉन 6 आ जाएगा यहाँ पे नेगेटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव है. तो जो पॉजिटिव वाली टर्म है वो नेगेटिव हो जाएंगी, जो नेगेटिव वाली टर्म है वो पॉजिटिव हो जाएंगी. अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक 1 अपॉन 6d से लेके 1 अपॉन 6d स्क्वायर तक तो बन गया fd. तो ये बन गया 1 प्लस fd, और 1 प्लस fd की पावर -1 आएगी, 1 प्लस fd की पावर -1 आएगी. तो एक्सपेंशन में क्या आएगा? अल्टरनेट साइन आएंगे. कैसे आएंगे? 1 माइनस fd आएगा, फिर 1 प्लस fd का स्क्वायर आएगा, एंड सो ऑन. ये टर्म आएगी. तो इसको एक्सपेंड करेंगे. पहली टर्म 1, दूसरी टर्म माइनस की आएगी d अपॉन 6 माइनस d स्क्वायर अपॉन 6. ये fd की जगह है ना, d अपॉन 6 माइनस d स्क्वायर अपॉन 6. तो दूसरी टर्म ये आएगी, तीसरी टर्म प्लस की आएगी, होल स्क्वायर, एंड सो ऑन. तो आपको कहां तक लेना है इसमें टर्म? जहां तक कि d की पावर 2 आएगी वहां तक लेना है. तो पहली टर्म में d और d स्क्वायर आ रहे हैं तो ये तो लेंगे ही. दूसरी टर्म में जब होल स्क्वायर करेंगे इसका, तो ये आएगा d स्क्वायर अपॉन 36, फिर आएगा d की पावर 4 अपॉन 36, फिर आएगा d क्यूब, तो वो छोड़ देंगे. ये वाली टर्म 4 वाली और d क्यूब वाली छोड़ देंगे, d स्क्वायर अपॉन 36 वाली टर्म ले लेंगे. ये वाली टर्म ले लेंगे d स्क्वायर अपॉन 36 वाली. तो ये एक्सपेंशन यहाँ तक जाएगा. ठीक है. तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा. फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, तो 2x अपॉन 6 कितना बचेगा यहाँ पे? 1 का तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा. एक्स स्क्वायर का करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा. 6 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ जाएगा 1/3x. फिर यहाँ पे 1/36 है, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स स्क्वायर का. 1 का तो 0 हो जाएगा. एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 बार करेंगे तो 2 आएगा. 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स स्क्वायर का तो 2 आएगा. ये 7 कहाँ से आ गया? 7 तो कहीं था भी नहीं. 7 को हटा दीजिए, 1 होगा यहाँ पे. 7 कहाँ से आ जाएगा? 7 कहीं दिया है?
नहीं दिया। ये वैसे ही गलती से लिखा हुआ है। तो 1/36 यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर का होगा डिफरेंशिएशन 2x और 2। तो 2 से 36 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 1/18। क्या आएगा 1/18। ठीक है भाई। अब इसको 1/d को लिख लेंगे इंटीग्रल। जो बाहर 1/d चल रहा है इसका मतलब है इंटीग्रल। तो इंटीग्रल 1 का x होगा, एक्स स्क्वायर का x/3 होगा, x/3 का x² 6 होगा, और 1/18 का x/18 होगा, 1/18 का x/18 होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर यहाँ तक हो गया। इसको भूल जाइए, गलत लिखा हुआ है। ठीक है भाई, ये आंसर गलत लिखा हुआ है। तो ये आपका आंसर ये हो गया, दोनों को ऐड करके लिख दीजिए, सी प्लस सी। बताइए यहाँ तक सभी को समझ में आया? यहाँ तक सभी को क्लियर है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. कोई डाउट तो मुझसे बता दीजिए। डाउट वाली चीजें तुरंत क्लियर करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वाला। अच्छा ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है, एक फंक्शन e⁻x है, दूसरा cos x है, राइट। तो दिस इज डिफरेंट केस फ्रॉम दी प्रीवियस केसेस व्हिच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। ये कैसा केस है जिसमें q क्या होगा, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। एक फंक्शन तो e⁻x है और दूसरा कोई x का फंक्शन है। जब q इस टाइप का होगा तो पी निकालने का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, मतलब थोड़ी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। प्रॉपर्टी क्या आएगी पी की, पी लिखते हैं 1/fd इंटू क्यू लिखते हैं ना, और क्यू की जगह यहाँ पे दे रखा है e⁻ax इंटू bx दे रखा है। तो इसमें हम प्रॉपर्टी क्या अप्लाई करते हैं, पहले ये e⁻ax इससे फ्री कर लेते हैं। पहले जो e⁻ax है इस एंटी डेरिवेटिव से फ्री कर लेते हैं। फ्री कैसे करते हैं, e⁻ax को हम लिख लेते हैं पहले, तो ये फ्री हो गया इससे एंटी डेरिवेटिव से। और इसको फ्री करने के लिए आपको थोड़ा सा बलिदान देना पड़ता है। क्या बलिदान देना पड़ता है, यहाँ पे जहाँ डी है डी की जगह पे रिप्लेस हो जाता है डी प्लस ए, डी की जगह पे एफ डी में क्या हो जाता है डी प्लस ए। इतना काम करना पड़ता है, तब ये e⁻ax इस एंटी डेरिवेटिव से फ्री हो जाता है। अब ये एंटी डेरिवेटिव केवल dx पे अप्लाई होगा, e⁻ax पे अप्लाई नहीं होगा। तो e⁻ax इसके साथ ऐसे ही नीचे मल्टीप्लाई में आता रहेगा, और आपको ये वाला सॉल्व करना है, dx पे अप्लाई करना है d प्लस ए का फंक्शन। ये प्रॉपर्टी क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. देखिए मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे d लिखा हुआ है या d² + 1 लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ e⁻3x इंटू x² लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ। तो ये e⁻3x इधर आ जाएगा, और जहाँ d है उसकी जगह क्या हो जाएगा d प्लस 3। d की जगह क्या हो जाएगा d प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा +1 ऐसे ही रहेगा, और x² ऐसे ही रहेगा। तो e⁻3x हो गया इंडिपेंडेंट डेरिवेटिव टर्म से, एंटी डेरिवेटिव टर्म से। यहाँ पर बचा d² प्लस का 6d और प्लस का 9 और एक 10, ये बचा यहाँ पे। अब ये इस पे ऑपरेट करेंगे x² पे। ये समझ में आ गया कैसे कर रहे हैं हम सॉल्व? ये तरीका है इसको अप्लाई करने का प्रॉपर्टी। सर एक बार फिर से बता दीजिए सर, d+3 आपने क्यों रखा है d की जगह? ये प्रॉपर्टी बताती है ना, इस प्रॉपर्टी से रखा है। ये प्रॉपर्टी कहती है कि e⁻ax को एंटी डेरिवेटिव से फ्री करना है तो d की जगह d प्लस ए करना पड़ेगा, और यहाँ e⁻ax की जगह क्या है 3 है, तो हमने a की जगह क्या रख दिया 3, d प्लस ए की जगह रख दिया d प्लस 3। ये प्रॉपर्टी अप्लाई ओके करना सर। बता रहे हैं, तो ये वाली प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करते हैं ये बता रहे हैं। पूरी बात सुनते नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या e⁻x cos x है, इसमें अप्लाई करेंगे ये वाली प्रॉपर्टी, इसलिए बताइए आप। हाँ भाई, CF कितना आया इसका? CF भी डिसाइड नहीं कर पाए अभी तक आप लोग, ऐसे कैसे काम चलेगा? जो काम आपकी करने का उसको तो मिनट से पहले कर दीजिए। इसका CF डिसाइड नहीं कर पाए आप लोग अभी तक क्वेश्चन का?
हाँ भाई, कितना आया इसका CF? रूट निकालेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला C1 E और स्क्वायर रूट ऑफ 4 - 8 अपॉन 2 -4 आएगा, -4 का 2i आएगा, 1 + -i आएगा। यहाँ 1 + -i कैसे हैं? कॉम्प्लेक्स रूट है, अल्फा की वैल्यू 1 है, बीटा की वैल्यू 1 है। तो फॉर्मूले से CF क्या होगा? यहाँ पे CF होगा e की पावर अल्फा x, अल्फा की जगह 1 है, और C1 cos बीटा x, बीटा की जगह 1 है, C1 cos x + C2 sin x। यस, यही है, यही है नहीं? Yes, CF यही है। यस अब सर, PI yes sir, PI की बात करते हैं तो PI दो टर्म में निकलेगा, x के लिए अलग, e की पावर x cos x के लिए अलग। तो PI हम निकालते हैं, दोनों टर्म अलग अलग लिख लेते हैं, x वाली अलग और e की पावर x cos x वाली अलग। पहले x वाली डिस्कस कर लेते हैं। x वाले के लिए लोएस्ट की टर्म 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लेने पे यहाँ 1 बचेगा, या माइनस का d बचेगा, और यहाँ पे d² 2 बचेगा। तो ये वाला टर्म d - d² 2 हो जाएगा। अगर ब्रैकेट देते हैं यहाँ पे हम अंदर, तो इसको एक्सपेंड कहाँ तक करेंगे? x की पावर 1 है तो d तक एक्सपेंड करेंगे। इसको एक्सपेंड करना है हमको, 1 - d - d² 2 को एक्सपेंड करना है। तो सॉरी, इसका एक्सपेंशन क्या आएगा? ये यहाँ पे माइनस है और बाहर भी माइनस है, तो सारी टर्म प्लस की आएंगी। तो पहली टर्म आएगी 1 प्लस, पहली टर्म क्या आएगी? 1 प्लस d - d² 2, ये आएगी पहली टर्म, 1 प्लस d - d² 2। दूसरी टर्म में इसका स्क्वायर आएगा, तो सारी टर्में बड़ी हो जाएंगी, सारी टर्में d की पावर 1 से ज्यादा हो जाएंगी। तो हमें इसकी भी लिखने की जरूरत नहीं है, d² वाली को भी, खाली 1 प्लस d हमारे काम का है। तो 1 प्लस d पे x ऑपरेट करेंगे, 1 में x की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × x हो जाएगा। d में x ऑपरेट, d को x पे ऑपरेट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा x + 1 और ये 0 हो जाएगी वाली टर्म। अब यहाँ पे दूसरी टर्म पे आ जाएगी, e की पावर x वाली टर्म पे, e की पावर x वाली टर्म पे आ जाएगी दूसरी वाली जो टर्म। दूसरी वाली टर्म डिस्कस कर लेते हैं। दूसरी वाली टर्म ये है, e की पावर x को 3 करेंगे यहाँ से डेरिवेटिव से, तो क्या करेंगे? जब e की पावर x 3 होगा तो क्या चेंज आएगा FD में? D+1 d की जगह d+1 रिप्लेस हो जाएगा। जहाँ जहाँ d है उसकी जगह d+1 हो जाएगा और e की पावर x आ जाएगा लेफ्ट साइड में। तो जहाँ d² था वहाँ d+1² हो गया, जहाँ 2d था वहाँ 2 टाइम d+1 हो गया, और 2 की जगह 2d रहेगा। अब इसको थोड़ा सा होल स्क्वायर ओपन करके सिंप्लीफाई कर लीजिए। ओके, तो सिंप्लीफाई करके यहाँ पे क्या आएगा? d² आएगा, प्लस का 2d आएगा, और माइनस के 2d से कैंसिल हो जाएगा। प्लस का 1 आएगा, माइनस का 2 आएगा, तो प्लस का 1 माइनस का 2 माइनस का 1 बचेगा। इतना बचेगा, ये 1/d² - 1 बचेगा cos x। अब यहाँ पे d² की जगह क्या रखेंगे आप? d² की जगह क्या रखेंगे? -1, तो ये आ जाएगा -1/2 cos x, यही आएगा ना? सर d² + 1 होगा सर। d² + 1 +1 बच रहा है तो ये 0 हो जाएगा -1 रखने पे, और 0 हो जाएगा तो उसकी इसमें x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। x से मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसको, 2d cos x, फिर 1/d का मतलब इंटीग्रल होता है, और cos x का इंटीग्रल हो जाएगा sin x, तो x/2 sin x आ जाएगा। क्या आ जाएगा? x/2 sin x, और e की पावर x ऐसे ही रहेगा मल्टीप्लाई। तो ये x की पावर x/2 sin x क्या आ गया आपका? PI आ गया, दूसरी वाली टर्म का PI। और PI बनाया था आपका ये वाला 1/2 x + 1 आया था, PI1। दोनों को ऐड करके कंप्लीट PI लिख दिया। यस। बताइए, इसमें कोई डाउट है किसी को? कोई दिक्कत आ रही है? यहाँ तक कोई दिक्कत आ रही है किसी दोस्त को? नो सर वहाँ बीच में माइनस साइन कैसे चेंज हुआ? यहाँ पे ये सेकेंड स्टेप में, मिडल में सेकंड स्टेप में यहाँ पे माइनस ex e to the power x 1/d + 1 है ना, सेकेंड टर्म का, जहाँ पे आप लाइन, रेड लाइन खड़े हुए हैं, ये नहीं वाला
हाँ तो इसके ये दो टर्म स्टेप था। नीचे। इससे 2 स्टेप नीचे। हाँ वही देख ली, माइनस ई टू द पावर एक्स। ये प्लस ये माइनस कैसे हो गया ये? प्लस को लाइन से दिख नहीं रहा है। ओके, मैं रिमूव करता हूँ ये। अब बताइए, अब क्लियर हो गया। ये सारा प्लस ही चला रहा हूँ। ओके, देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, इसको आप ट्राई कर लीजिए। इसमें क्या है, केस दे दिए हैं, 2 केस दे रखे हैं जो आप लोग अपनी कहीं ये वाइब्रेशन वाली थ्योरी पढ़ी होगी आपने, वहां से ये वाले केस। क्वेश्चन कंप्लीट नहीं लिखा हुआ है, क्वेश्चन के अंदर ही बता देते हैं इन कंडीशन। अबे हम कल So in this case, when we replace capital D at the place of d over dt, we can write in term of capital D like this: d square plus 2kd plus b square x is equal to e की पावर minus kt sin wt। ये d की फॉर्म में लिख लेंगे, फिर m की फॉर्म में लिख लेंगे, d को m से रिप्लेस कर देंगे और y की जगह 1 रख देंगे, और राइट साइड पार्ट 0 लेकर के इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, m स्क्वायर प्लस 2km प्लस b स्क्वायर, और यहाँ से आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के ये m की वैल्यू निकाल लेंगे, माइनस के प्लस माइनस आई एंड स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आ जाएगा, कर लेंगे काम। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आ जाएगा माइनस 2k एंड प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर की जगह आ जाएगा 2k स्क्वायर का 2k का होल स्क्वायर यानी 4k स्क्वायर माइनस 4ac की जगह आ जाएगा 4b स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ से 4 कॉमन आएगा और ये 2 कैंसिल हो जाएगा नीचे, यहाँ बचेगा माइनस के प्लस माइनस अंडर रूट में ये आयोटा लिया है इन्होंने बाहर, यानी कि b जो है वो ग्रेटर देन k है, b ग्रेटर देन k है, तो ये नेगेटिव साइन आएगा यहाँ पे, और उसकी वजह से आयोटा आएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। ये कंडीशन दी नहीं रखी है, दे दी इसको, तो ये वाले इसके रूट आ जाएंगे, कॉम्प्लेक्स रूट। और यहाँ पे 2 केस इसने कंसीडर किए हैं, डब्ल्यू स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर एंड डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। तो ये 2 केस लेकर के सॉल्व कर रहा है इस क्वेश्चन को। तो पहला केस लेते हैं, when w square is not equal to b square minus k square। ये पहला वाला केस लेके चल रहे हैं, तो इसका CF होगा e की पावर माइनस ये वाला kt, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x की जगह t है और y की जगह x है। तो ये ध्यान रखना है आपको, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं, किसमें आप काम कर रहे हैं। तो e की पावर माइनस kt c1 cos बीटा की जगह अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू टी प्लस c2 साइन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू टी। c1 c2 कांस्टेंट है सभी को पता है। तो ये यहाँ पे क्या है, इसका CF है। अब PI निकालेंगे, जब इसका PI आप निकालेंगे तो 1/FD इंटू राइट साइड फंक्शन की पावर माइनस KT साइन WT लिखेंगे यहाँ पे ये। तो अभी जो इसने ये कंडीशन दी है ये PI में यूज होगी, डब्ल्यू स्क्वायर नॉट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ये PI में जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे e की पावर माइनस kt को फ्री कर लेंगे इनकी डेरिवेटिव से, जहाँ जहाँ d है उसकी जगह माइनस d प्लस a की जगह d माइनस k रख देंगे। तो d को रिप्लेस कर देंगे d माइनस k से, जहाँ जहाँ d है उसकी जगह आ जाएगा d माइनस k, राइट। और फिर इसको एक्सपेंड करेंगे, d स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2d आएगा और प्लस 2d k से कैंसिल हो जाएगा, और ये आएगा माइनस का 2k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे बचेगा फाइनली हाँ 1k स्क्वायर, यहाँ से जो आएगा 1 कम हो जाएगा, तो b स्क्वायर माइनस k स्क्वायर ही रह जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस k स्क्वायर यहाँ पे मिलेगा। फाइन, अब क्या करते हैं आप, b स्क्वायर की जगह क्या रखते हैं, इसका स्क्वायर का नेगेटिव, तो माइनस w स्क्वायर रखेंगे इसकी जगह, d स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, माइनस w स्क्वायर यहाँ b स्क्वायर माइनस k स्क्वायर माइनस आएगा 1/w स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस k स्क्वायर। ठीक है,
तो हमने क्या लिया था यहाँ पे, हमने ये लिया था कि जो डब्ल्यू स्क्वायर है वो बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर के इक्वल नहीं है। हमने क्या लिया था, जो डब्ल्यू स्क्वायर है दैट इज नॉट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। तो बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर को पहले लिख लिया, माइनस डब्ल्यू स्क्वायर को बाद में लिख लिया। अगर ये इक्वल हो जाता है इसके, अगर ये इक्वल आप लेके चलते हैं तो ये नीचे क्या बन जाता है, जीरो बन जाता। अगर बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर के इक्वल हो जाता तो ये बन जाता जीरो, और जीरो बनने पे क्या होता है, केस फेल हो जाता है, इसलिए नहीं दिया। ठीक है, तो वो अलग केस है, इक्वल वाला अलग केस है, इसमें अलग केस बना के दिया है। तो इस वाले केस में ये वाला पीआई बनेगा, और जो दूसरा केस है, दूसरे केस में इसने इसके इक्वल लिया है। इक्वल लेने पे क्या चेंज आएगा, इक्वल लेने पे क्या चेंज आएगा, इक्वल लेने पे ये वाला यहाँ पे जीरो बन जाएगा। जब बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर के बराबर होगा तो ये बन जाएगा जीरो। तो जीरो 1/0 हो जाएगा इंफिनिटी। इंफिनिटी के केस में आप क्या करते हैं, टी से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2d आएगा। ये बी स्क्वायर के स्क्वायर जीरो हो जाएगा डिफरेंशिएट करने पे, तो 1/2d आएगा साइन डब्ल्यू टी के साथ में, और एक टी से आपने मल्टीप्लाई किया है, e की पावर माइनस के टी चली रहा है इसके साथ पहले से। तो 1/d का मतलब अब इंटीग्रेशन करना है आपको इसका, कि e की पावर माइनस के टी बाई 2, और यहाँ पे इंटीग्रल करना है साइन डब्ल्यू टी का। तो साइन डब्ल्यू टी का इंटीग्रल सभी को पता है, माइनस 1/w cos डब्ल्यू टी हो जाएगा। तो माइनस 1/w cos डब्ल्यू टी टी बाई 2 की पावर माइनस के टी हमने पहले लिख दिया बाहर। अब यहाँ पे बचेगा आपका माइनस टी की पावर माइनस के टी अपॉन 2w cos डब्ल्यू टी। तो ये दूसरे वाले केस में जो पी आई है वो चेंज हो गया। इस वाले केस में, इक्वल वाले केस में जो पी आई है वो अनइक्वल वाले केस से अलग आएगा, इसलिए दोनों केस में अलग अलग सॉल्व करके देना है। इस क्वेश्चन में गलती क्या करते हैं स्टूडेंट, केवल एक ही केस कंसीडर करके चलते हैं, जिस